وزیراعظم شہباز شریف دورہ فرانس مکمل کر کے لندن پہنچ گئے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ موسم سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس گیا تھا۔ IMF کے MD سے دوستانہ گفتگو ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ IMF پروگرام اب منظور ہو جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ فرانس مکمل کر کے لندن پہنچ گئے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ موسم سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس گیا تھا۔ IMF کے MD سے دوستانہ گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ IMF پروگرام اب منظور ہو جانا چاہیے۔ اسحاق ڈار ان کی ٹیم IMF سے رابطے میں ہے۔ دعا کریں کہ IMF بورڈ پروگرام کی منظوری دے دے۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ منگل تک اس کیس کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں۔ بغاوت پر سویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ملک کی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں۔ عدالتی کارروائی کی مزید تفصیل اسلام آباد سے آسیہ کوثر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے عام شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ سول سوسائٹی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ آرمی ایکٹ قوانین کو بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کن وجوہات کی بنا پر سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا بتائیں کس طریقہ کار کے تحت یہ تمام گرفتاریاں کی گئیں۔ جسٹس مظاہر نے سوال کیا کہ آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کن درج مقدمات میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دفعات شامل کی گئیں۔ کمانڈنگ آفیسر کیسے سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل احمد حسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کر کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اپنے معاملات کے لیے خود جج نہیں بن سکتا۔ جس پر چیف جسٹس نے پوچھا قانون میں یہ کیوں درج ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ کن سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں۔ ملک کی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کوشش ہوگی کہ اس کا نتیجہ منگل تک نکل آئے۔ اٹارنی جنرل نے گرفتار افراد کی فہرست بھی عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں کوئی شخص گرفتار نہیں۔ پشاور میں 4 لوگ زیر حراست ہیں۔ پنجاب میں MPO کے تحت 21 افراد گرفتار ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 141 افراد گرفتار ہیں۔ سندھ میں 172 افراد جوڈیشل تحویل میں ہیں۔ 345 افراد گرفتار ہوئے اور 70 رہا ہوئے۔ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں۔ کوئی صحافی، وکیل، خاتون اور کم عمر فوج کی تحویل میں نہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مسلم لیگ نون کو کیسے دے سکتا ہوں۔ ان کی جانب سے میثاق معیشت کی پیشکش بھی کی گئی۔ ایپٹما ہاؤس میں صنعتکاروں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ میثاق جمہوریت پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ عدم تحفظ کی وجہ سے پاکستانی بیرون ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ I told him, second day of the parliament, you sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. You should sign a charter of economy. But the man had no idea. Half the people sitting there do not have any idea. उससे कभी commerce की हो, कभी धंधा किया हो, कभी दरख्त लगाए हो, कभी पौधे लगाए हो. And nobody who doesn't know agriculture, because we are an agrarian society. From the days of India, Sindhu के ज़माने से, when it was called Sindhu, हम लोग agriculture नाइल की तरह we were producing. So anybody who doesn't know agriculture doesn't know Pakistan. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں پینٹاگون پر حملہ ہوتا تو کیا اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا۔ وزیر خارجہ کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ امریکہ میں قانون کے مطابق حملہ آوروں کو سزا دی گئی۔ 9 مئی کے بعد انہیں بار بار پیغام دیا کہ اعلان لا تعلقی کریں اور معافی مانگیں۔ اس لیڈر نے بات نہیں مانی اور اپنی پارٹی کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ تو امریکہ میں بھی ایک پاپولسٹ سیاستدان تھا اور وہ بھی پاپولسٹ پالیٹکس کر رہا تھا
मगर जब उनके यहाँ वो पॉपुलिस्ट सियासत और वो पॉपुलिस्ट सियासतदान सियासी मैदान को छोड़ के उनकी रेड लाइंस क्रॉस करना शुरू करती हैं, उनके इदारे पे हमला आवर हुए, तो फिर उन सब के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो गया। उस रात जनाब स्पीकर जब उनका पार्लियामान पे हमला हुआ, वो साबिक सदर अमेरिका, उस वक्त अमेरिका का सदर था, उसका ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया, उसका फेसबुक अकाउंट को बंद कर दिया गया। वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना राय शेयर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जमहूरियत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया है। उनकी जानिब से इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। उन्होंने कहा कि लाहौर ब्रिज खुलने से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, बाकी तरक्याती काम भी जल्द मुकम्मल करेंगे। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन 80% मुकम्मल कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो मुस्तकबिल में भी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यासिर गिलानी की अहलिया को रिहा कर दिया गया है। बहुत अरसे से लटका और बल्कि काम रुका पड़ा था, और हमारी कोशिश थी कि इसको जितना जल्दी कंप्लीट करा सकें उसको कंप्लीट करा लें। और बेसिकली वापडा का एक इशू था जिसकी वजह से बिल्कुल काम रुक गया हुआ था, तो वो भी सॉर्ट आउट हुआ। रेलवे वालों के साथ भी जो मसला था वो भी सॉर्ट आउट हुआ, और फाइनली ये ब्रिज आज कंप्लीट हो गया और अब थोड़ी देर बाद ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो LDA की टीम है जिसने इस पे काम किया है, सारे आई थिंक शाबाश के मुस्तहिक हैं, बिकॉज इन सब ने यहाँ पे रोज़ आके चेक किया है। फाइनली ये ब्रिज आज रेडी है। तो अब जो बाकी डेवलपमेंट की चीज़ें लाहौर की चल रही हैं वो भी हमारी इसी तरह प्रायोरिटी है कि उनको जितना जल्दी ख़त्म करा सकते हैं उनको ख़त्म कराएं, ताकि पब्लिक को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। 9 रुकनी लार्जर बेंच से अलग होने के बाद जस्टिस काजी फाजीसा ने एक नोट तहरीर किया, जिसे दूसरी मरतबा अपलोड होने के बाद भी वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाजीसा ने तहरीरी नोट में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौइयत का मुकदमा लगाने का नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब से उनकी अदालत उज़्मा में तैनाती हुई है तब से कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। हमेशा कोशिश की कि हर फैसला एक ही पैमाने से आईन व कानून के मुताबिक किया जाए। जस्टिस काजी फाजीसा ने मज़ीद वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। आज तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मेरी राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद खदीजा शाह से अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक खदीजा शाह से अमरीकी वफ़द की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। मुलाकात के दौरान खदीजा शाह की रिहाई से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी काउंसिल जनरल को खदीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दी थी। खदीजा शाह पर 9 मई को जलाओ घिराव और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। दिन रात बिजली की बंदिश की वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में सूरज आग उगलने लगा, गर्मी जानियां भी शुरू हो गई, जिससे शहरी बिलबिला उठे। सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। एलानिया हो या गैर एलानिया, बस हर तरफ लोड शेडिंग ही चल रही है। शहरी कहते हैं कि महंगाई का अजाब कम था, जो जानलेवा गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7800 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19100 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली की तलब 26900 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का मामला कौमी असम्बली तक पहुंच गया है, जबकि नूर आलम खान की जानिब से कहा गया है कि बिजली महकमा बंद करता है और गालियां हमें पड़ती हैं। विफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने थरकोल के 5000 मेगावाट का मुआहदा किया था, जिसे मनसूख कर दिया गया। मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से सिद्दीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग की गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई देने लगी। कहर ढाती गर्मी में जालिमाना बिजली बंदिश पर अरकाने असम्बली फट पड़े। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि बिजली महकमे के लोग बंद करते हैं, गालियां हम खाते हैं। वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम नहीं आते, ठंडे कमरों में बैठे हैं। पूरे मुल्क में शेड्यूल लोड शेडिंग करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को बिजली भी नहीं दे रहे। इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उनके हलके में 3 दिन से बिजली नहीं है। बिजली का इशू बहुत अहम है, ना वजीर है ना पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद है। वज़ीर तालीम राना तनवीर का कहना था कि 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी। कौम ने मौका दिया तो बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मीर मुनव्वर अली तालपुर लोड शेडिंग पर बात की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट कर गए। विफाकी वजीर बरायाबी वसायल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, एक कमेटी बनाई जाए कि 2008 में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या थी और 2013 में क्या सूरत हाल थी। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि तेल से बिजली बनाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक करारदाद मंजूर करें कि तेल से बिजली बनाने पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट के मौके पर दूसरे रोज़ भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब, जर्मन चांसलर, यूरोपीय कमीशन की सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से अलग अलग मुलाकातें की। आइए तफसील जानते हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का इनकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौका पर दूसरे रोज भी आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के सरबराहान से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग की मुलाकात में CPEC समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जर्मन चांसलर से मुलाकात में 163 मिलियन यूरो की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में GSP+ पर मजबूत सियासी अज़म मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ब्राज़ील के सदर ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा समेत दीगर मामलात में ब्राज़ील के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा कि आलमी बरादरी शर्म-उल-शेख में COP27 में किए गए वादों पर अमल करे।